Dear friend, today we are taking the topic resource planning in India. Why resource planning in India is a essential one? Resource planning is a complex process, एक जटिल प्रोसेस है विच इंक्लूड द आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज मतलब रिसोर्स को पहचानना अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री पूरे देश में कि वेयर द रिसोर्स आर लोकेटेड एंड देयर इन्वेंट्री इज also needed. Uh, this identification and inventory involves survey करना कि where the resource are occurred, their mapping and their qualitative and quantitative estimations कितनी मतलब क्या क्वालिटी है रिसोर्सेज की और क्या जो है क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी है दैट विल बी द इकोनॉमिकली फिजिबल्स और नॉट ये देखना पड़ेगा इकोनॉमिक रूप से फ़ायदेमंद है या नहीं है और साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज की मेजरमेंट कितनी है और सेकंड पॉइंट इफ़ वी आर प्लानिंग द रिसोर्सेज इन इंडिया we will have to evolve say planning structures that will connected with the technology skills and institutions set up for the implementation resource development plan तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो रिसोर्सेज हैं उसके लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल्स और ऐसी संस्थाएं इंस्टीट्यूशनल सेटअप उनके लिए हैं या नहीं है so that the resource development plans may be implemented. Third point, matching the resource development plans with the overall national development plans. तो जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स है उसको जो है नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करना ये जो है दिस इज आल्सो थर्ड पॉइंट ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग्स इंडिया हैज मेड concerted efforts for achieving the goal of resource planning right from the first 5 plans launched after the independence. भारत जो है it is continuing doing a lot of efforts to achieve the goal of the resource planning. भारत जो है from the independence of the country that India got in 1947. Since then, the India is continuously uh, doing a lot of efforts to achieve the goal of the resource planning. The availability of the resources is a necessary condition for the development of any regions, but mere availability of resource in the absence of the corresponding change in technology and institution may hinder the development. Availability of resources the essential one. First and foremost conditions for the development of any particular regions, but merely availability of resources in the absence of corresponding change in technology and institutions may hinder the development. लेकिन केवल रिसोर्सेज जो हैं उनकी उपलब्धता ही ज़रूरी नहीं है साथ ही साथ जो है अगर कॉरस्पॉन्डिंग चेंज नहीं है टेक्नोलॉजी में इंस्टीट्यूशंस में तो इट विल हिंडर द डेवलपमेंट ये डेवलपमेंट जो है हर्डल कर देगा रोक देगा और रुक जाएगा इससे इफ़ वी डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड द इंस्टीट्यूशंस देयर आर मैनी रीजन इन आवर कंट्री बट that are the rich one in resources but they are included इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स हमारे देश में कई क्षेत्र ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं बट दे आर रिच इन द मिनरल्स इन द मैटर ऑफ द मिनरल्स ये मिनरल्स के मैटर में रिच है उसका एक बड़ा सबसे बड़ा कारण ये है कि जो रॉयल्टी है उसकी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है एक स्मॉल fractions of the money of the
resources is kept by the state. Others money is taken by the center. On the contrary, इसके विपरीत there are some regions which have a poor resource base. कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो पुअर रिसोर्स बेस हैं जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स नहीं है, बट दे आर द इकोनॉमिकली डेवलप्ड, लेकिन वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड एरियाज हैं। जो भारत की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ द कॉलोनाइजेशंस, जो उपनिवेशवाद की हिस्ट्री है, वो ये रिवील करती है, ये दिखाती है कि जो रिसोर्सेज भारत में थे और कॉलोनीज में थे, नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो इन अदर colonies of the foreign powers, they were the main attractions, they were the main destinations of the foreign invaders. वो foreign invaders जो थे, foreign power जो थी, they were attractive toward the resources of colonies. It was primarily the higher levels of technical development of the colonizing country that helped them to exploit the resources of the other regions and establish their supremacy over the colonies. ये प्रारंभिक रूप से जो है द colonizing countries जिन those were ruling in colonies, these powers were these powers were higher level of the technological development, and that make them to exploit resources of other regions. Because of the technology, availability of the technology, make it possible टू एक्सप्लोर द रिसोर्सेज ऑफ अदर रीजन्स, जो दूसरे क्षेत्रों के रीजन्स के रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लोर कर सकें, एंड दे मे एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर द कॉलोनीज, और अपनी पूर्वसत्ता और अपनी सुप्रीमेसी को जो है कॉलोनीज में स्थापित कर सकें। देयरफॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट। रिसोर्सेज जो हैं वो डेवलपमेंट में कोऑपरेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो तभी करते हैं व्हेन दे आर एक्कम्पेन्ड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज। वो तभी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जब आपके पास जो है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, यानी कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो, और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल चेंज जो है के साथ जो है वो रिसोर्स जो है वो तभी विकास में सहायक हो सकते हैं। दे कैन प्रोवाइड द असिस्टेंस इन डेवलपिंग द एरिया। इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस ऑल दिस इन डिफरेंट फेसेस ऑफ द कॉलोनाइजेशन। भारत ने कॉलोनाइजेशन के हर फेस में इसको महसूस किया है। देयरफॉर इन इंडिया, इसलिए भारत में जो डेवलपमेंट है सामान्य तौर पर और रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है, पर्टिकुलरली इट डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द एबिलिटी ऑफ रिसोर्स। ये ना केवल रिसोर्स की उपलब्धता इसमें इन्वॉल्व है, बल्कि इसमें जो है टेक्नोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल्स इज आल्सो इंक्लूडेड और इन्वॉल्व।